Good afternoon. I welcome all of you to this online press conference on educational issues, specifically pertaining to the recently issued UGC guidelines on examination and syllabus revision by the CBSE. As we all are aware that both these issues are very critical and important, as they would be affecting the lives of a large number of students across India, and it would not only be affecting their educational progress, their academic performance, and their future, but also given that we are going through some very testing, unprecedented times. Specifically, I'm referring to the corona pandemic. This will also be affecting their health and possibly their lives. As you know, the issue is that the UGC has made conducting examinations by the end of September compulsory, and this is very important and very critical an issue. Similarly, another issue that is of very great importance is that this under the guidance, under the direction of the MHRD has decided to revise the syllabus and cut down 30% of the syllabus, and that is and how they did it is a very troubling thing, because they have cut down on some very important and some very necessary aspects of the syllabus. And in this regard, today we are conducting this online uh, press conference to address these issues. Hello, SIU of India. sorry, Muskilka. This press conference is being held in collaboration with the Students Islamic Organization of India, SIO India, in collaboration with the Center for Educational Research and Training, CERT, New Delhi. We are very much honored to have amongst us today Honorable E.T. Muhammad Bashir Sahib. He is a former Minister of Education, State of Kerala, and currently Member of Parliament. Along with him, we have Mr. Sadat Hussain, who is a research scholar from JNU, also students leader. And along with him, I would be presenting before you myself, Sayyid Ahmed Muzakkir, Director of CERT. I would now like to invite Honorable E.T. Muhammad Bashir Sahib to present his view in front of the media on these two very important issues.
I request Mr. E.T. Muhammad Bashir Sahib to start your talk. Hello, you will please wait. Sir will coming. Please wait. Okay, thank you. Hello. Islam. ഇന്നലത്തെ ഫോട്ടോ ആ As we are waiting for the Honorable E.T. Bashir sir, in meantime, I would like to invite Brother Sadat Hussain, research scholar, JNU, to present his views. Brother Sadat Hussain. थैंक यू मुज़क्किर। सबसे पहले मैं CERT और SAI ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया। तमाम प्रेस पर्सन्स और जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं नाज़रीन को गुड इवनिंग। सबसे पहले तो जुलाई 6 जुलाई का एक ऑर्डर आया है कि यानी जितने भी जो एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन है UGC का जो ऑर्डर है उसमें यह है कि मतलब जो एंड सेमिस्टर एग्ज़ाम्स हैं और जो फाइनल एग्जामिनेशंस होंगे उनको एक ब्लेंडेड सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन या ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी कोट एंड कोट फिजिबिलिटी और सूटेबिलिटी जैसा भी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन समझता है उस हिसाब से एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने की बात की गई है। तो इसके अंदर यानी ये रैशनल ये बताया गया है कि क्रेडिबिलिटी और एकेडमिक फ्यूचर और एकेडमिक क्रेडेंशियल इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये ऑर्डर दिया गया है कि सितंबर एंड तक एग्ज़ाम्स को कंडक्ट किया जाए ऑनलाइन या ऑफलाइन या ब्लेंड ऑफ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि किस यानी पहला सवाल ये है कि किस बेसिस पर सितंबर एंड डिसाइड हुआ है। क्या कोई एक्सपर्ट मेडिकल ऑफिसर्स के यानी एक्सपर्ट ऑफिसर जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं क्या उनके तरफ से कोई रिकमेंडेशन आया है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर उनके तरफ से रिकमेंडेशन आया है तो वो रिकमेंडेशन क्यों पब्लिक में नहीं है, यूजीसी ने उसका हवाला क्यों नहीं दिया है, यानी किस बेसिस पर, यानी मतलब हम ये क्यूरियस हैं कि यूजीसी अगर ये कहता है कि सितंबर बाई एंड तक इसको करना है। आज हम देखते हैं कि 7,98,000 केसेस हुए हैं। अगर मूविंग एवरेज निकालेंगे तो यानी जो पॉजिटिव केसेस हैं 7,98,000 का अगर आज के केसेस को मिला के अगर उसका मूविंग एवरेज निकालेंगे तो कहीं ना कहीं कल के दिन तक जो है 8,25,000 तक केसेस जाने वाले हैं। ऐसे हालात में यूजीसी ने किस बुनियाद पर स्टूडेंट
फैकल्टी, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले जो अथॉरिटी है, स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये तमाम लोगों को रिस्क में डालकर ये फैसला लिया है। इसका एक रैशनल हमको समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात ये है कि इस यूजीसी का जो ऑर्डर है उसी के अंदर आप कॉन्ट्रडिक्शन आप देख सकते हैं। उस कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट करते हुए हम ये चाहते हैं कि एक ऑर्डर पूरी तरह से रिवोक हो, एक पूरी तरह से हम इस ऑर्डर को खारिज भी करते हैं। खारिज करने का रीज़न आप देखेंगे कि पहली बात तो ये है कि जिस तरह से रैशनल ये बताया गया है कि एकेडमिक फ्यूचर है, क्रेडेंशियल्स हैं और करियर यानी करियर फ्यूचर है स्टूडेंट का जो लास्ट सेमेस्टर में है या जो फाइनल ईयर में है। और साथ साथ में ये भी कहा गया है कि यानी जो लोग जो सितंबर एंड में एग्ज़ाम्स नहीं लिख सकते हैं वो लोग उनका एक प्रोविजनल एग्ज़ाम होगा। जब चीज़ें नॉर्मल होंगी तब जो है उनका रिपीट एग्ज़ाम यानी मतलब जिस तरह से प्रोविजनल सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होगा। पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट के दरमियान और जॉब मार्केट में, उस एग्ज़ाम की हैसियत जो है सप्लीमेंट्री की तरह ही होती है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आप ये भी कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी और एकेडमिक क्रेडेंशियल की बात भी आप कह रहे हैं और साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो लोग छूट जाएंगे वो लोग रिपीट एग्ज़ाम यानी वो जब चीज़ें नॉर्मल होंगी उस वक्त आप प्रोविजनल एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं, ये भी कह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यानी जो सिस्टम आप क्रिएट कर रहे हैं, क्या उस सिस्टम के अंदर हायरार्की आपने मेंटेन नहीं किया है क्या? ये सवाल पैदा होता है। हायरार्की इस तरह से है कि हम देखते हैं कि नॉर्मली जिस तरह से एग्ज़ाम्स होते हैं या जो लोग फ्रेश एग्ज़ाम्स लिखते हैं और जो सप्लीमेंट्री प्रोविजनल एग्ज़ाम्स लिखते हैं, उनके बीच में एक हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है। यानी जब जॉब मार्केट में जाते हैं हम ये ऑब्जर्वेशन में आया है कि जो लोग फ्रेश एग्ज़ाम्स देते हैं, उनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है किनके बरक्स जो लोग प्रोविजनल और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स देते हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि आप स्टूडेंट के एकेडमिक क्रेडेंशियल और उनके करियर जो फ्यूचर है उसको लेकर आप कंसर्न हैं, यूजीसी ये कहता है और साथ साथ में आप जो प्रोविजनल एग्ज़ाम्स लिखने वाले हैं, जो लोग सितंबर एंड में एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते हैं, वो लोग जब चीज़ें नॉर्मल होंगी उस वक्त रिपीट एग्ज़ाम जब देंगे तो उनके बारे में आपका कंसर्न ही नहीं है। आप ऑलरेडी Okay. एक स्टार्टअप बनाए हैं। Okay, we welcome our MP, E.T. Bashir sir. Yes. So, welcome E.T. Bashir sir. Dear friends, today we are, I think you can hear me, everybody can hear me. Yes, yes. Yes. Today we are discussing two important topics. Number one, UGC guideline on conducting the examination. They have suggested certain changes in the wake of COVID-19. The second thing, reduction of syllabus by 30%. That's a decision announced by CBSE. Coming to this point in brief, with regard to guideline of the UGC, the question before us is whether it is acceptable to us generally. Generally speaking, as it is not acceptable to us. Reason is very simple. Examination according to them, by September 2020, end of September 2020, the annual examination process will have to be completed. With regard to that, I wish to say that, of course, we are having certain complication during this period. At the same time, we must see that examination should not be a one-time affair in a year. It's not what is called a yearly kind of activity. Examination should be a continuous process.
That is comprehensive and continuous evaluation. See, you can say that. In that, until that method, the real inspection of the ability of the student cannot be measured. As my own experience, I was Minister for Education in the state of Kerala for 7 years. It was during my period, the introduction of the CE was done. There was a lot of discussion on that. That includes not only learning the things in by heart, but it was really activity based. Continuous evaluation means periodical kind of class test and all kind of things. Certain activities was also there, like seminar, discussion, group discussion, collections, and this kind of activities. All the activities were given 10 marks each, and the other thing also. So the students' ability should be measured in such a way as a comprehensive evaluation of the things periodically. Second thing, as far as examination is concerned, we must have certain what is called scientific criteria, measuring the ability of the student. In that case also, because of the urgency, we might have skipped certain things. Another thing, there's a question before us, whether UGC's this guideline is practically possible or feasible. I would like to say that UGC, of course, they can give a guideline. There's no problem in that. It should be only what is called a kind of recommendatory nature. There must be flexibility for the states in this way. There is another argument that we should not have examination this year. We will cancel the entire examination process. There also, I don't agree with that. We must have examinations. And UGC, before issuing such a decision, they could have discussed with the concerned ministers of the state that they have not done. So that is one point which I want to clarify first. With the second point is, that is the most important thing. The CBSE's decision to cut 30% of the total syllabus in the wake of this COVID-19. There are also, I would like to say, the decision of CBSE is not like that, UGC. CBSE in curriculum framing and this kind of activity, academic kind of activity, they are having a pivotal role to play. In that, what they have done is, they have reduced 30% in which are the fields? Political science, economic, geography, business management studies, history, social science, and covering other subjects like that, demonetization, GST, organic farming, climate changing, growth of education sector, and colonialism, like that, social movement, etc. Secular democracy and all kinds of things. It's a very dangerous move. It will have to be objected, because these kind of things, I don't know why they have given low priority for this kind of things. The basic structure of Indian culture depends on secular democracy. They are saying that the lessons on democracy need not be taught because they find it as low priority. Similarly, India's history and that kind of things. I don't want to take much of your time. All these kind of things are very much important as far as India is concerned, because our human relations, our citizens' right, all these things. BJP is always having an agenda on this. All the subjects which they have now cut short. In all these subjects, whether it is secularism, whether it is democracy and federalism, all this kind of which they have addressed now, recklessly they have decided to cut it off. That is a part of their agenda. We were all discussing all these points in earlier occasion also. So this kind of reduction is not at all allowable. It is to be objected,
Because it's not a casual thing they are saying. They are saying that all these lessons are there in the books. It can be taught. But there will be no examination. On this portion, there will be no examination. See, it's very dangerous. Without examination, who is going to take it seriously? Students will not take it seriously. So these are certain things. So I am of the firm opinion that UGC examination thinking on this thing, UGC should be changed. Because of the COVID, we may have some special situation, but they should not treat this examination as simple as they think. Number two, the CBSE move is ill-motivated. It is not only for, I don't think it is not only for to face this situation. They are having their own hidden agenda in this. So I am of the opinion that secular democratic forces should oppose this, and we must try to build up some consciousness about everybody concerned. That's what I want to say in brief. Other people also may add their viewpoints in this. Since I had to attend the small function of the party, I am just joining with them. Anyhow, SIO, always they used to have very, very fruitful discussion, and that too threadbare discussion. Now, because of this COVID, we are not in a position to meet together and have the discussion. Anyhow, I once again congratulate them for organizing such a meaningful discussion in this. Thank you very much. Thank you, Bashir Saab. Thank you very much for your valuable time. I'd like to invite Brother Sadat Hussain, research scholar, JNU. Please continue. Thank you, Sadat. Thank you, Muzakir. मैं ये कह रहा था कि यूजीसी का जो Sadat, you can continue. You're not muted. हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, थैंक यू मुज़क्किर। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से यूजीसी का ऑर्डर आया है, यूजीसी के अंदर रैशनल भी बताया है। तो रैशनल में ये कहा है कि यानी जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स और क्रेडिबिलिटी, डिग्री का क्रेडिबिलिटी की बात की जा रही है। एक आयरॉनिकल चीज़ है कि अगर वाकई में यूजीसी कंसर्न्ड है जी, सादत भाई, you're audible. Please continue. हाँ, मैं ये कहने की कोशिश कर Please keep talking. हाँ जी, I'm able to hear you. हाँ, ओके। तो ये आयरॉनिकल ऑर्डर इसलिए है कि जैसा मैंने बताया है कि एकेडमिक क्रेडेंशियल्स और डिग्री का क्रेडिबिलिटी की बात यूजीसी कर रहा है। तो क्या डिग्री की क्रेडिबिलिटी और एकेडमिक क्रेडेंशियल जो प्रोविजनल एग्जाम, सेम ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, सेम ऑर्डर में है कि प्रोविजनल एग्जाम का पॉसिबिलिटी है। जब प्रोविजनल एग्जाम्स की पॉसिबिलिटी है तो इस तरह का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाने की क्या ज़रूरत थी? अगर एग्जाम्स कंडक्ट करना है तो एग्जाम्स जो है तमाम स्टूडेंट के एग्जाम्स एक साथ होना चाहिए। ये अपने आप में डिस्कशन का मौजू है कि जो प्रेजेंट मॉडर्न कॉलोनियल एजुकेशन स्ट्रक्चर का इवैल्यूएशन सिस्टम है, असेसमेंट सिस्टम है, उस पर सवाल होना भी चाहिए, डिस्कशन होना भी चाहिए। यानी जिस तरह का एक टेम्पररी अल्टरनेटिव हम ये भी देते हैं कि कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको आरटी एक्ट ने स्कूल लेवल पर भी बात की है। लेकिन यहाँ पर अगर जिस तरह से जो गिवन सिस्टम है एग्जामिनेशन का, उसको अगर हम लोग अज्यूम कर लें कि ये एक सिस्टम है जिसको हम एक्नॉलेज करते हैं, इस तरह से अगर हम मान लें, तो मान ले भी तो
सवाल ये पैदा होता है कि आप इस तरह का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्यों बनाना चाहते हैं? आप एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों नहीं कर सकते? एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करने का फ़ायदा ये हो सकता है कि जिस तरह से आप यानी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स एग्ज़ाम से जुड़े हुए, वो स्टूडेंट्स हो, एग्ज़ामिनर्स हैं, टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम लोगों को आप रिस्क में डाल रहे हैं। और साथ-साथ में जो प्रोविज़नल स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में भी आप एक एंग्ज़ायटी, पैनिक आप क्रिएट कर रहे हैं कि कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट के तौर पर आप अज़्यूम कर लीजिए कि मेरे क्लासमेट्स जाकर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, मैं एग्ज़ाम्स देने के लिए अभी मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो मैं प्रोविज़नल प्रोविज़नल जब एग्ज़ाम होगा बाद में, जब चीज़ें नॉर्मलाइज़ होंगी, तो उस वक़्त देने वाला हूँ। मेरे अंदर बिल्कुल एक इन्विटेबल है कि मेरे अंदर एक पैनिक और एंग्ज़ायटी क्रिएट होगा और मैं कोशिश करूँगा तमाम जो कोविड का रिस्क है उसको लेते हुए मैं जाकर एग्ज़ाम्स दूँगा। और खुदा ना ख़ास्ता पता नहीं आज जिस तरह से हालात है, 7,98,000 केसेज़ वहाँ तक हम लोग रीच हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेंगे। ये किस बेसिस पे कर रहे हैं? क्या मेडिकल क्या कोई मेडिकल रिकमेंडेशन आया है, एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकते हैं? तो एक मेडिकल प्रोविज़न आया है, कोई लेटर है, कोई रिकमेंडेशन है, तो वो यूजीसी स्टूडेंट के सामने, पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने ये बताएँ, एग्ज़ामिनर्स के सामने ये बताएँ। और दूसरी बात ये है कि अ एक और एग्ज़ाम्पल 7 जुलाई को एक न्यूज़ आई थी कीनिया से रिलेटेड। कीनिया में अब तक टोटल केसेस है 8,000 से 9,000 तक केसेस हैं, टोटल केसेस पॉज़िटिव। और हिंदुस्तान में है 8 लाख के करीब केसेस। और 8,000 केसेस होने के बावजूद भी कीनिया ने एक रेडिकल डिसीज़न लिया है, वो इस साल को लैप्स किया है स्कूल लेवल पर। यानी स्कूल यानी पूरी तरह से लैप्स, ना एग्ज़ाम्स होंगे, ना क्लासेस होंगे। तो वो एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर अपना सकते हैं और यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इस पर डेलिब्रेशन होना चाहिए कि क्या हम लोग इस साल को सस्पेंड करें। क्योंकि जैसा आप ये मान रहे हैं कि एक पीरियड आएगा जिसमें प्रोविज़नल एग्ज़ाम्स हो सकता है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि जो तमाम स्टूडेंट्स उस प्रोविज़नल स्टूडेंट की तरह तमाम स्टूडेंट्स एक साथ एग्ज़ाम्स दें और तमाम लोग अपने आप को तमाम स्टूडेंट्स अपने आप को सिक्योर फ़ील करें। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से कोरोना वायरस आने के बाद में, ये पैंडेमिक आने के बाद में हेल्थ क्राइसिस के साथ में हम इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस का हम अनाउंस किए हैं और 100 डेज़ हो गए हैं, एक भी पार्लियामेंट सेशन नहीं हुआ है। लेकिन एक भी पार्लियामेंट सेशन नहीं होना, वो कंसर्न अगर हमारे अंदर नहीं हो सकता है क्योंकि उसके पीछे वैलिड रीज़न है, हम उसको मानते भी हैं कि एक वैलिड रीज़न है पैंडेमिक के चलते हुए पार्लियामेंट सेशंस नहीं होना चाहिए, गैदरिंग्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं और दीगर ऑफिशियल्स का हेल्थ को हम रिस्क में नहीं डाल सकते हैं, तो एक वैलिड रीज़न है। तो वहाँ पर वैलिड रीज़न हो सकता है, तो स्टूडेंट का हेल्थ को रिस्क में डालना किस हद तक मुनासिब है, ये अपने आप में सवाल उन पॉलिसी मेकर्स को, उन हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो हुकूमत में बैठे हैं, उन पर ये सवाल है। और दूसरी बात ये है कि अ, अ, जी अ, 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 जिस तरह से हम यानी हेल्थ क्राइसिस में, पैंडेमिक के क्राइसिस के टाइम वक्त में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर की कमी पा रहे हैं। तो एक कर्नाटका में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। वो डिसीजन ये था कि 6 मंथ के लिए डॉक्टर्स को एम्प्लॉय करेंगे। ये अडल्ट डॉक्टर्स होंगे जिनका अभी अभी एमबीबीएस कंप्लीट हुआ है या एमबीबीएस के लास्ट स्टेज में होंगे, वो लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा 6 मंथ के लिए और उनको जो है 40 टू 45,000 तक उनको सैलरी दिया जाएगा और वो लोग हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में काम करेंगे। तो क्या हमारे पास इतना बड़ा नंबर है रिसर्च स्कॉलर्स का, क्या उनको एम्प्लॉय करके जो टीचिंग का जो गैप है पैंडेमिक के चलते उसको हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात करने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों के साथ-साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये होने की ज़रूरत है कि यानी जब पैंडेमिक आया तो हम लोग यानी जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो एड हॉक डिसीजंस लेते जा रहे हैं और जिसमें यानी जो ट्रांजिशन है, यानी ऑफलाइन एग्जामिनेशन, ऑफलाइन जो यानी जो क्लासेस होते थे, फिजिकल क्लासरूम के अंदर जो क्लासेस होते थे, वहाँ से सीधा हम लोग ऑनलाइन क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन इवैल्यूएशन, ऑनलाइन असेसमेंट की हम लोग ट्रांजिट करें। और ये जब ट्रांजिशन था,
वो ट्रांजिशन जो है किसी भी थीसिस से कहीं पर भी हम अभी जितना 3 महीने का जो एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि कहीं से भी हम लोग जिस तरह से यूजीसी का ऑर्डर कहता है कि प्रिपेयर्डनेस, कहीं पर भी प्रिपेयर हम लोग नज़र नहीं आ रहे, ना टीचर प्रिपेयर थे, ना स्टूडेंट प्रिपेयर थे, ना एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर था। तो किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि जो प्रिपेयर्डनेस की बात ये जो ऑर्डर कह रहा है कि किस बेसिस पर ये प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में सवाल है। तो मैं एज ए रिसर्चर ऑफ एजुकेशन में स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि एग्जामिनेशन को लैप्स किया जाए इस साल के, और एग्जामिनेशन जब भी चीज़ें नॉर्मल हो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है। जो आप जो करियर को सामने रखते हुए, एकेडमिक क्रेडेंशियल को सामने रखते हुए आप जो बात कर रहे हैं, उस बात को सामने रखते हुए एग्जाम्स कंडक्ट कराना है तो बाद में भी एग्जाम्स कंडक्ट करा सकते हैं। यानी ऐसा तो नहीं होने वाला है कि इस पैंडेमिक के पीरियड में कहीं जॉब ओपनिंग्स आने वाले, यानी एक मास लेवल पे जॉब ओपनिंग्स आएंगी कि स्टूडेंट उसमें एनरोल होकर इंटरव्यू अटेंड करने वाले हैं। ऐसा तो एक्सेप्शनल केसेस होंगे, या कुछ कुछ सेक्टर हैं जो जॉब ऑफरिंग पैंडेमिक के दौरान भी कर रहा है, जो टेलीफोनिक और वीडियो कॉलिंग के थ्रू इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मास लेवल पर जॉब ओपनिंग्स आ रहे हैं। उसके बजाय उल्टा ये हो रहा है कि जॉब्स कट हो रहे हैं, जिसका जॉब है वो लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, और ऑलरेडी स्टूडेंट पैनिक्ड है, एंग्जाइटी का शिकार हो रहा है, बहुत सारे मेंटल क्राइसिस हैं। इन तमाम के बीच में एक और एंग्जाइटी और पैनिक क्रिएट करना एग्जाम्स को अनाउंस करके सितंबर एंड में, जब केस इंक्रीज होकर 7,98,000 ऑलरेडी हो चुके हैं और 22,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इस पैंडमिक के ज़रिए से मर चुके हैं। तो ऐसे हालात में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना कैसे फिजिबल है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की अगर बात की, जिस तरह से ऑर्डर कह रहा है कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स तो बिल्कुल फीसिबल नहीं है हिंदुस्तान के प्रेजेंट जो इंटरनेट का जो स्ट्रक्चर है उसको सामने रखते हुए। और जिस तरह से देखा गया है कि 2 रिपोर्ट हमारे सामने आई हैं। एक रिपोर्ट जेएनयू के फैकल्टी ने स्टडी करके बनाई है जेएनयू के स्टूडेंट पर, और दूसरी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी। जेएनयू के फैकल्टी इसका जो रिपोर्ट पे मैं गुजरा, तो 42% जो स्टूडेंट है जेएनयू एनआईआरएफ का जो रिसेंट रैंकिंग था टॉप 3 यूनिवर्सिटी में प्लेस करता है। टॉप 3 यूनिवर्सिटी में रैंकिंग में प्लेस करने वाले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के पास 42% अपने घर जाने के बाद में प्रॉपर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिवाइसेस होंगे, डिवाइसेस हैं तो उनके पास इंटरनेट नहीं होगा, इंटरनेट होगा तो इंटरनेट का फ्रीक्वेंसी, इंटरनेट का जो स्पीड है वो क्वेश्चनेबल होगा। और दूसरे साइड बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं कि स्टूडेंट कश्मीर से आते हैं। कश्मीर में अभी इंटरनेट की जो सूरत हाल है बहुत ही खस्ता है, यानी 2G इंटरनेट वहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है बहुत सारे इलाकों में कश्मीर के। और हमारे कोलीग से ये भी सुनने में आ रहा है कि 2 MB का फाइल डाउनलोड करना भी वहाँ पर बहुत ही दुश्वारकुन मरहला बन चुका है। ऐसे हालात में एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्सेसिबिलिटी को लेकर एग्जाम्स का, ऑनलाइन एग्जाम्स का, वो ये है कि यानी मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस का हमारे पास केस है। ऐसा तो नहीं है कि यानी आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन क्लासेस, इसका पॉजिटिव नेगेटिव्स हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस पिछले कई सालों से चला आ रहा है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस के ऊपर एक स्टडी हुई है, कंप्यूटर्स एंड एजुकेशन नाम का एक इंटरनेशनल जर्नल है, 145th वॉल्यूम में एक स्टडी को उसके अंदर पब्लिश किया है। 2014 से 2018 तक के बीच में का उन्होंने स्टडी किया है पूरे वर्ल्ड वाइड में ऑनलाइन कोर्सेस से कौन लोग ज़्यादा एडवांटेजियस, यानी फ़ायदा किसको मिलता है। ऑनलाइन कोर्सेस में ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को मिलता है जो एडवांटेजियस पोजीशन पे होते हैं। एडवांटेजियस पोजीशन क्या है? एडवांटेजियस पोजीशन ये है कि कंप्यूटर, इंटरनेट, ये तमाम जो डिवाइसेस है, डिवाइसेस को लेकर जो यूज टू होके रहते हैं वही लोग इसमें अपना कमांड हासिल कर सकते हैं और वो आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे हालात में इंटरनेट स्ट्रक्चर ही हायरार्किकल है। इंटरनेट प्रोवाइड होने के बावजूद भी ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर
एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट कर रहा है इंटरनेट, जैसा हम बोल रहे हैं कि इंटरनेट क्रांति आ चुकी है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इंटरनेट पर कमांड कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं। यानी इंटरनेट में यानी जो ओपन रिसोर्सेस है, एग्जामिनेशन की तैयारी की बात आए, ओपन रिसोर्सेस को एक्सेस करने का कौन एक्सेस कर सकते हैं? वही लोग एक्सेस कर पाएंगे जो लोग एडवांटेजियस पोजीशन पे रहेंगे, जो इंटरनेट और तमाम टेक्निकल ग्लिचेस को समझते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा है कि स्कूल की सतह पर भी यानी बहुत सारे स्कूलों में बहुत ही लो क्वालिटी के कंप्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं, ना कंप्यूटर टीचर होगा, ना वो कंप्यूटर लैब जो है कभी, जब से कंप्यूटर वहाँ पर आए हैं तब से वो कंप्यूटर लैब कभी खुला नहीं होगा, कंप्यूटर में धूल पड़ती रहेगी। यानी ना स्टूडेंट को पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है किसी तरह से ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को किस तरह से हैंडल किया जाए। तो मैं अपने कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो पैंडेमिक के दौर में या ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, दोनों फीसिबल नहीं है। उसके बावजूद भी अगर ब्लेंड की बात करेंगे आप ऑनलाइन प्लस ऑनलाइन ऑफलाइन की, तो वो भी कहीं ना कहीं ना सूटेबल है ना फीसिबल है। तो जैसा आप कहते हैं कि फिजिबिलिटी और सूटेबिलिटी, वो फिजिबिलिटी और सूटेबिलिटी क्या है, वो स्टूडेंट के सामने, एग्जामिनर्स के सामने, फैकल्टी के सामने यूजीसी क्लियरली बताएं कि वो सूटेबिलिटी फिजिबिलिटी क्या है, किस बेसिस पर आप सूटेबल और फिजिबल मानते हैं कि एग्जाम्स कंडक्ट किया जाए। तो मैं यही कहते हुए अपने जो रिकमेंडेशंस और डिमांड्स में यही कहना चाहता हूँ कि एग्जाम्स को कम्प्लीटली पोस्टपोन किया जाए, जब तक कि ये पैंडेमिक क्राइसिस पूरी तरह से न टले तब तक पोस्टपोन किया जाए। और दूसरा है कि कीनिया का हमारे पास मॉडल है, कंप्लीट जो है एकेडमिक ईयर को सस्पेंड कर देना और अगले साल उसको कंटिन्यू करना। और तीसरा ये है कि इस टाइम में पैंडेमिक के पीरियड में पॉलिसी मेकर इस पर थोड़ा ध्यान दें कि जो हमारे पास जो ऑलरेडी ट्रेनिंग की कमी है टीचिंग और लर्निंग का ऑनलाइन स्पेसेस में, उस पर ज़्यादा चर्चा हो, उस पर ज़्यादा जो है स्ट्रैटेजी बनाए, उस पर पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करे। तो यही कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और CERT और SAO का दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू सादिक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर, आपकी बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। इसी के साथ हम जो है एक और इम्पोर्टेंट इश्यू है, दैट इज CBSE ने अपना सिलेबस रिवाइज किया है और इस रिवाइज सिलेबस के अंदर जो है काफी स्ट्रेसिंग और प्रॉब्लमेटिक चीजें देखने को मिली हैं। MHRD ने रिसेंटली जो है CBSE को डायरेक्ट किया था कि सिलेबस गिवन के जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और उनको पढ़ाई वगैरह में दिक्कत हो रही है और ऑनलाइन के मोड में जो क्लासेस चल रही हैं, ये सब लिमिटेशंस को रखते हुए अंडर द गाइडेंस ऑफ अंडर द डायरेक्शन ऑफ MHRD, CBSE ने 30% अपने सिलेबस को रिड्यूस किया है। ये रिडक्शन अपनी जगह एक डिस्कशन का मौजू है, इट्स अ टॉपिक फॉर डिस्कशन बाय इन इटसेल्फ के व्हाई हैज द CBSE reduced and what is the rationale and what are the criteria that were kept in view when undertaking this 30% reduction in the syllabus. However, for high school and higher secondary school, that is from 9th, 10th, 11th, 12th, 4 classes, 30% of the syllabus has been reduced. But the manner in which this reduction has taken place is very questionable and problematic. Subjects such as political science, economics, geography, business studies, history, social science, physics, chemistry, etc. Everything has been reduced. What has been reduced is a more problematic thing. When we see the topics that were dropped, you see that in political science, topics such as democratic rights, citizenship rights, secularism, nationalism, federalism, challenges to democracy have been dropped. On the other hand, when we see economics, topics such as monopoly, demonetization, GST have been dropped from the economics and business study. Organic farming, climate change, growth of education sector have been dropped in geography and history. Colonialism, partition, social movements, etc. have been
dropped from social science. This raises question as to why these very important and critical topics. I mean, we live in a secular democratic country, and the greatest threat that our nation is facing is undermining of democratic ethos, undermining of democratic institution. And there has been, as we see since 2014, ever since this government came into the power in their first term as well as in their second term, there has been a systematic undermining of democratic values, undermining of democratic institution, undermining of separation of power, undermining of federal structure of this country. And recently, ever since last year, with the moves such as CAA, even the question of citizenship, how people are being treated, how people are being targeted, this has become, and recently we have seen a slew of arrests against students, against activists, whereas we see real-time criminals being very much free to operate, free to move with impunity and immunity, whereas students registering their dissent, protesting, exercising the democratic constitutional right of dissent are being arrested under draconian laws such as UPA and NSA and such, and they are being charged with sedition. These raises serious concerns. I mean, this fits into the larger pattern in which the government is trying to undermine the whole secular democratic structure of this country. And now their latest target is to remove these values and these ethos from the collective understanding and of the nation's youngsters and youth by depriving them of this important knowledge. I mean, when you want to, first of all, the question of as to why do you want to slash syllabus? How would that help? Would you, for instance, be slashing the fee, reducing the fee proportionately? 30% reduction in syllabus will be followed with 30% reduction in fee. These are the questions. And even if when they are doing such a thing, if such a thing is being, if is being felt to be important, and they are allowing this to happen, how and on basis of what did they choosing to slash these specific topics is an important question. And apart from these things, even important things which have direct impact on the lives of students, impact on the future of this country, such as demonetization, monopoly. We know the crony capitalistic nature of this current dispensation, and how they are being favoring crony capitalism. And in the light of this, such an important things and the massive blunders that has happened, like demonetization, GST, these are being brushed under the carpet, and these are being removed from the, this is nothing but an effort to delete the shortcomings and blunders of this government, such as demonetization, GST. Among others, the important things, for example, how to make, say, for example, the agriculture and the farming, major part of the Indian economy is based on that. Those things are being dropped. Similarly, climate change, which is one of the important issues that of our time, that is being dropped. Growth of education sector, such a very vital question, a vital topic that has been chosen to be discarded. Similarly, colonialism, the effects of which we are still feeling, the effect of partition that the country underwent, the importance of social movements, how they impact society, how they try to make society, our societies better. These are all being, cut off from the syllabus, so that, first of all, knowledge is being denied to the next generation. Their importance is being curtailed, and then importantly, these things are being taken. I mean, it's a
basically it's a misuse of power, it's an abuse of power by denying the knowledge of these things to the future of this country, which are the students and the youth. This is why we need to seriously register our protest against this. We need to question the government, and at the same time, we should stand up to it. The civil society should register its protest, and it should petition the CBSE as to the manner of why such a change is being done without any reason being cited, and what is the mechanism at which the CBSE arrived, and who were consulted, and how did these things happen. These things have to be questioned, and in this regard, we have a collective duty to question the government and make the government and stop the government from abusing its power. And now we would like to take questions from the press. Okay. With this, we would conclude our online press conference of today. I would like to thank Honorable E.T. Bashir Sahib, Member of Parliament, and Brother Sadat Hussain Khalifa, research scholar, JNU, and students leader. And I'd like to thank the members of the press who have taken their time to join us today. I think there is a question. Okay, with this, we would like to conclude. I thank SI of India and for their cooperation in organizing this press conference. On behalf of CRT, I thank you all for being here. Thank you very much. And with this, we conclude this press conference.